Hello everyone, good morning. My name is Yasin and I am the best filmmaking student in Zavist. And the girl laughing at me is... Hi, my name is Alicia, and I'm here to provide the comedic relief and occasional eye rolls while Yasin tries to convince us that he's the Spielberg of Zabist. Anyway, let's put our focus back on what's important. So let's start the biggest media event of Zabist. In a world where loud voices dominate, amplifying the unheard is an act of rebellion against the tyranny of the majority. This is what this year's ZMF is all about. We are truly honored to have you all join us today as we embark on this journey of amplifying the unheard. Before we officially start this event, we would like to thank Yamaha, Popular Group, and TCS for sponsoring Zab Media Festival 2024. We are also happy to announce J-Dot as our proud partner. TapMat, Tibbat, DKT, and Himani have also been keen supporters of the event. Let's mention Nishman, Hope by Popular, FM 91, and Kasre Shireen for being our styling, hydration, radio, and refreshment partners, respectively. And how can we forget our giveaway partners, Crispo, Shangri-La, Body Bar, Jade, Vouch 365, and Nikita. We extend our warmest welcome and gratitude to all the faculty members present here today. Vice President of Academics, Dr. Altaf Mukati, Media Sciences Head of Department, Sir Saklan Zaidi, and faculty members. All of you have been instrumental in making this day possible. The faculty's dedication to nurturing young talent and fostering a culture of excellence is truly commendable. Thank you for your unwavering commitment to our students' success in bringing this event to life. So, Yasin, shall we start? Well, we have the spotlight, so let's talk for a while. Okay. I learned how to animate the movement of a character last week. I think I can revive Tom and Jerry for my nephew. Really? Good for you. Well, in the coming weeks, we're going to turn this very room into Mughal Emperor ka darbar. And who can deny the power of lighting to turn a video into cinema? A thing we learn day in, day out. A glimpse of all this and more is headed your way over the next 3 days. But before moving on, we would like to talk about someone very special. He's a master of calligraphy and is always ready with a joke and a helping hand. The person who, if you sit with for chai, will take you on a journey through the history of mankind, the complexity of human nature, to the current state of the world. A gem of a person, a wealth of knowledge. I'm sure you all know who we are referring to if you have ever had a conversation with this great man. Our beloved head of department, The greatest of all time, Sir Saklan Zaidi. ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया थोड़ा कम रखते अच्छा एक शेर है बाहर किसका डर लगता है घर में चिड़ियाँ क्यों आती हैं अपना घर आने से पहले इतनी गलियाँ क्यों आती हैं तो यहाँ इस शेर में एक चिड़िया का वर्ड इस्तेमाल हुआ है और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि बहुत एक तवील अरसे से लोग जो है इस चीज़ के बारे में हैरान हैं कि शहर में हज़ारों लाखों बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा परिंदे होते हैं बट वेयर डू दे डिसअपियर आफ्टर देयर डिमाइज उनकी डेड बॉडीज़ उस लिहाज से नहीं मिलती हैं तो हमेशा से लोग इसके पीछे रहे हैं बड़े बड़े दीनी शख्सियात से भी पूछा गया इंक्लूडिंग इमाम जाफ़र सादिक कि ये परिंदे कहाँ जाते हैं ये क्यों हमें नहीं मिलते जैसे जानवरों की डेड बॉडीज़ मिल जाती हैं तो हिस्ट्री में उन्होंने कहा था खुदा उनके दिल में इल्का करते वो वहाँ चले जाते हैं बट नोबडी आस्क्ड हिम वेयर और अभी तक उस तरीके से चीज़ें सामने नहीं आती लेकिन साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ती गई तो लोग नई चीज़ें लेके आए कि वो डिकम्पोज जल्दी हो जाते हैं चूंटियाँ खा लेती हैं दूसरे जानवर खा लेते हैं
लेकिन लाखों में से कुछ तो नज़र आने चाहिए, तो ये एक राज है हमेशा से। लेकिन बहरहाल ये तो चिड़िया और परिंदों की बात है, लेकिन कुछ अरसे पहले आपने देखा दुनिया में हमारे रीसेंट टाइम में भी कुछ ऐसा हुआ कि उससे भी कम वक्त में पूरे के पूरे आबादी हमारी जो है वो कहीं डिसअपियर हो गई। तो अब परिंदों के बारे में तो हमने बात कर ली, बट जो लोग अचानक से गायब हो गए, और वही हमारी थीम है, एम्पलीफाइंग द अनहर्ड। तो हमारी जिम्मेदारी है कि अपने अपने डोमेन में एक हार्मनी कायम रखते हुए दूसरों को डिस्टर्ब किए बगैर कुछ ना कुछ करते रहें। तो डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया साइंसेज का ये जो मीडिया फेस्टिवल है, इसमें अच्छी बात ये होती है कि एक दूसरे को स्टूडेंट मौका देते हैं और उनके साथ साथ चलते हैं। और बहुत कम ऐसा होता है कि स्टूडेंट को पता हो कि वो कर क्या रहा है। जैसे अक्सर ये होता है कि हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम एक इस तरह से होते हैं कि एक शिप में हम आगे की तरफ दौड़ रहे होते हैं, विच इज़ कमिंग द अदर वे अराउंड। फ़ारसी में एक मिसरा है, बेराह रफ्ते पुश्त बेमकसद हमी रवान। बेराह रफ्ते यानी कि पता ही नहीं है किस तरफ जा रहे हैं। पुश्त बेमकसद, जिस तरफ जाना है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है। पुश्त बेमकसद, और हम मिल के बस मैं चला जा रहा हूँ। तो इन फेस्टिवल्स की और साथ रहने की जो एक रिवायत है, उससे ये होता है कि सब कम से कम एक मकसद को साथ रख के साथ चलते हैं, जो मुझे इस बहस में काफ़ी नज़र आई, और हमारी फील्ड के लिए तो ये बड़ी ही अच्छी चीज़ है। तो ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, ना हमें लेना है। सिर्फ अर्ज़ ये करना है कि जो भी काम का बेड़ा आपने उठाया अपनी अपनी कैपेसिटी में करें। पाकिस्तान एक बड़ी अजीब व गरीब कॉम्पोजिशन वाली नेशन है, जिसकी बड़ी तादाद आप जैसे यूथ पे मुश्तमिल है। तो आप लोग आज जो करेंगे वही जो है वो सिलसिला आगे बढ़ेगा। बस जाते जाते मैं आपको एक दो चीज़ें बताता चलूँ कि जो कदीम तरीन कहानियाँ जो इंसानों ने लिखनी शुरू करी, हमारे इलाके की जो सबसे पुरानी कहानी है गिलगमेश, एपिक ऑफ गिलगमेश, जो 2026 से 2018 BC के दरमियान लिखी गई, यानी कि हज़रत इब्राहीम से भी कोई तकरीबन 10 सदियाँ पहले। तो उसकी भी जो एसेंस है, उसके जो कैरेक्टर है, वो दरअसल इमॉर्टैलिटी की तलाश में है। वो चाहते हैं कि हमेशा बाकी रहें। ये फ़ानी होना इंसान का जो है, ये उनके समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या है। फिर इससे जब आगे हम चलते हैं गिलगमेश से आगे, तो जिस साल कायद आज़म पैदा हुए थे उस साल हमारे ही इलाके की एक कहानी पूरी डिस्कवर हुई, और उस कहानी में भी कम व बेश इंसान जो है वो इमॉर्टैलिटी के पीछे है, एग्जिस्टेंस के पीछे है। एग्जिस्टेंस इंसान बचाना चाहता है। फिर आगे चलें तो ग्रीक्स आते हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस ज़माने में परिंदों से बात कर रहे थे, उससे तकरीबन उसी टाइम के आसपास यूनान में एक शायर था, उसने बड़ी मशहूर एपिक लिखी ओडिसी, इलियड एंड ओडिसी, जिसका उर्दू में भी ये जॉन एलिया वगैरह ने तर्जुमा शाया कराया था 1963 में, जहाँ गर्द की वापसी। तो उसमें भी वो ये जो हीरो है वो घर से निकला हुआ है, जैसे आप लोग अपने अपने घरों से रोज़ाना निकलते हैं लेकिन घर वापस पहुंच जाते हैं। उसमें जो हीरो था वो तकरीबन 10 साल अपने घर से निकला रहा और वापस नहीं पहुंच पाया। तो जब उसे घर जाने का एक मौका मैसर आया, तो वो गॉडेस जो थी, उसने जो उसको सबसे बड़ी ऑफ़र की थी वो यही थी कि मैं तुम्हें इमॉर्टल बना दूंगी। तो ये उसके लिए बड़ा अहम मौका था कि मैं खुदाओं की तरह इमॉर्टल हो जाऊं या वापस घर चला जाऊं। तो इफ्तिखार आरिफ का एक शेर है, बस्ती बस्ती घूमे पर घर लौट के आना भूले ना,
अल्लाह साईं डार से बिछड़ी कूंज ठिकाना भूले ना। कूंज एक परिंदा होता है जो अपने हर्ट से जब बिछड़ जाता है तो रोता फिरता है और उसी में उसकी डेथ हो जाती है। तो ओडिसियस भी अपने घर जाना चाहता है। कैलिप्सो आइलैंड से वो कहता है मुझे वापस घर जाना है, अपने बच्चे से मिलना है, अपनी बीवी से मिलना है, मुझे इमॉर्टैलिटी नहीं चाहिए, मुझे खुदाओं वाली कोई चीज़ नहीं चाहिए, जो इफ्तिखार आरिफ साहब कह गए। तो इसी तरीके से कुछ लोग अपने घरों से निकलते रहे हैं हिस्ट्री के अंदर। ये एक पैटर्न है, हिजरतें होती रही हैं और लोग कहीं ना कहीं जहाँ के मुंतकिल होते रहे। लेकिन हमारे मुल्क के बड़े मशहूर लिखारी हैं बिलाल तनवीर, लम्स में पढ़ाते हैं, उनका एक नावल है अंग्रेज़ी में कराची के ऊपर, स्कैटर हेयर्स टू ग्रेट। उन्होंने इस बात का उनसे सवाल किया गया कि आप न्यूयॉर्क गए तो आप रुके क्यों नहीं, आपके पास काफ़ी मौक़े थे। तो उन्होंने कहा जिस शहर में यादें ना हों उस शहर में रहना बड़ा मुश्किल है। घर अजीब से नज़र आते हैं, खालीपन का एहसास होता है, यादें इधर से उधर घूमती फिरती नज़र नहीं आती। तो वो वापस पाकिस्तान आ गए। जिस शहर में यादें ना हो वहाँ रहना मुश्किल है। तो कूंज वापस जाना चाहती है अपनी डार तक, ओडिसियस अपने घर जाना चाहता है, अपनी बीवी तक, और बहुत से लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं जिनके लिए अपनी अपनी कैपेसिटी पे आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। यही हमारी थीम है, एम्पलीफाइंग द अनहर्ड। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for those kind words. Now we would like to invite Sir Altaf Muqati on stage to give a few words. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning to everyone sitting here. अभी ये सकलेन जैदी साहब ने बहुत उदास कर दिया बहुत सारे शेर व शायरी करके, और तो मैं थोड़ा सा एक अपोजिट जाऊंगा। पहले तो मैं इन्होंने चूँकि टेम्पो सेट कर दिया कि उर्दू में स्पीच देनी है, हालांकि इट शुड बी मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू। बट फर्स्ट ऑफ ऑल congratulations to the Media Science Department for continuing its regular and most important activity, that is Zabist Media Festival. Saklen, थैंक यू। सकलेन साहब से मैंने अभी गुजारिश की थी कि यार ये जो इवेंट है ये आप विंटर में रखें, बिकॉज आउटसाइड एक्टिविटीज़ नियर टू इम्पॉसिबल हैं बिकॉज ऑफ हॉट डेज। अभी यहाँ यूवी जो है अल्ट्रा वायलेट रेज बहुत हाई हैं एंड इट इज़ बेटर टू अवॉइड द सन एक्सपोजर। तो बहरहाल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एज यू हैव प्रॉमिस्ड। सकलेन जैदी साहब अभी थोड़े अरसे पहले ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, और रियली आई वॉज वेरी वेरी यू नो not confused, but I was very much in the stage of uncertainty के दो तीन नाम थे कि किसको HOD की एक लीडरशिप दें। तो आज आप लोगों ने जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया है तो मेरा ख्याल है कि मेरी चॉइस गलत नहीं थी। So thank you very much for inviting me to for the welcome address. मैंने आपको पहले बताया था कि अगर 45 इयर्स पहले जब मैं अपना कैरियर शुरू कर रहा था पढ़ाई का एजुकेशन का, तो उस वक्त मीडिया साइंस नहीं था, सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल था। 1976 की बात करता हूँ। तो अगर वो मीडिया साइंस होता तो मैं यकीनन मीडिया साइंस प्रेफर करता, मगर उस वक्त था नहीं मीडिया साइंस इस तरह से। मैंने इंजीनियरिंग ऑप्ट की, और आजकल जो
इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स का जो डिक्लाइन है ये सब आपको पता होगा। कोई भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है इस वक्त ऊपर नहीं है, सब डिक्लाइन पर हैं। तो मुझसे किसी ने थोड़े दिन पहले हमारी जो हमारी मैनेजमेंट साइंस की जो एक कॉन्फ्रेंस थी मैरियट में, तो उसमें मुझसे somebody asked me कि सर वाई इंजीनियरिंग इज़ ऑन द डिक्लाइन। तो मैंने कहा जी सारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स तो डिक्लाइन पे नहीं हैं, एक इंजीनियरिंग तो बहुत ऊपर जा रहा है। तो मैंने कहा ऑडियंस से कि कैन यू गेस विच इंजीनियरिंग प्रोग्राम इज़ गोइंग वेरी रैपिडली ऑन द अपर साइड। तो किसी ने जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा कि इट्स पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, दैट इज़ गोइंग वेरी वेल। एंड आई वॉज थिंकिंग सम टाइम अगो कि जहाँ जहाँ भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती है उसको हम ट्रांसफॉर्म करके पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में कन्वर्ट कर दें, तो उससे मेरा ख्याल है बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, एक ख़ास सेगमेंट से तो पूरी उनकी वो है ना सारे स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स मिलेंगे हमें, क्योंकि अब इस मुल्क में सिर्फ यही रह गया और कुछ नहीं है। जब कौमी तराना सुनते हैं और उसके एक एक वर्ड पर हम गौर करते हैं तो लिटरली बड़ा अफसोस होता है कि उस कायदे आज़म के पाकिस्तान को हम किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। सो वी प्रे टू अल्लाह ऑलमाइटी कि ये सारी जो सिचुएशन है वो अच्छी हो जाए, फेवरेबल हो जाए। पाकिस्तान हैज़ ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। मैं बाहर भी गया हूँ कई जगहों पे, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एंड पाकिस्तानी पीपल आर परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल, बट इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी, नॉट कलेक्टिवली लाइक इंडियंस आर डूइंग। उसकी वजह यही है कि एज ए नेशन हम एक इकट्ठा नहीं हुए आज तक। वी आर डिस्पर्स, वी आर डूइंग एवरीथिंग इंडिविजुअली। तो वी प्रे टू अल्लाह ऑलमाइटी कि द कंट्री शुड बी पुट ऑन द राइट डायरेक्शन, और जो भी अच्छी विजनरी लीडरशिप है इस पाकिस्तान को मिले ताकि एक विजन के साथ हम चलें। एनीवे, दिस फेस्टिवल इज़ अ टेस्टिमनी ऑफ द डिपार्टमेंट्स परफॉर्मेंस एंड इट्स एक्टिविटीज़। मीडिया साइंस डिपार्टमेंट एट ZBIST is performing very well, but you see कि we are not the traditional department like the department exists at other places. At most of the places, this department is named as Mass Communication Department, like at Karachi University, where their focus is on journalism, mainly journalism. But here, we not only teach the journalism, but we teach the advertising and film production as well. And film production is our strength, right? So, Media Festival is an event that celebrates various forms of media, such as film, design, television, digital media, journalism, advertising, and much more. So, these festivals can take many forms, from small community gatherings to a large-scale international events. Our film production has already attained an international level, as some of our short movies were selected for the Cannes Film Festival in the recent past. So that credit goes to the Media Science Department. Okay, they have introduced us internationally at some forum. In this 3-day festival, there will be 2 workshops and 3 panel discussions. First workshop will be on a 1-minute film to be conducted by our faculty members, Mr. Zishan Haider, very recently joined us once again, Faraz Iqbal, Ali Abbas Naqvi, and Omar Qazi. Another workshop will be on film score music workshop. That is very close to my heart. ये score जो music score होता है, मुझे बड़े शौक है उसका. So I wish I could conduct this workshop, but unfortunately I am tied up with several other activities. ये जो VP की पोजीशन होती है ना, ये इतनी ब्लेसिंग नहीं होती है, वो बड़ी ख़राब होती है, क्योंकि यू नेवर नो कि कितनी आपको रोज़ाना डाइवर्सिफाइड किस्म की एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं. और हमारे जो डीन साहब हैं, डॉक्टर काशिफ अली एंड इस तरह के हमारे 3 और भी डीन्स हैं, वो हमें एंगेज ही रखते हैं किसी न किसी एक्टिविटी में. सो एनीवे, द सेकंड डे दैट विल बी टुमारो, there will be 3 most important events, cinematography, journalism, and advertising. And day 3 shall witness visual storytelling and an important panel discussion on how new wave of directors plan stories. Overall, media festivals are vibrant and dynamic events that bring together diverse communities of media professionals, scholars, and artists to celebrate the power and impact of media in our society. And we need a vibrant media science
department and their activities, especially in these circumstances where everybody is found to be under depression. So that is the only thing that we listen music or we somehow take part in media activities so that we can change our mindset a little bit and whatever the depression the country is going through, everybody is under depression, I'm sure. So that will be only way to rescue us. So I would like to thank the keynote speaker of this session, Ms. Fiza Ali Mirza, a leading film producer, for giving her valuable time and honoring us with her presence on this occasion. She needs applause. Perhaps I and some of my faculty of media science may like to visit your production house. And then I must thank to the head of department, Mr. Saklen Zaidi Saab, and his entire team for making the efforts to organize this 3-day festival. I'm also extremely thankful to all the sponsors for this event. I hope the audience, especially the students, will greatly benefit from this event. Good luck to all. So, without further ado, let us introduce our distinguished speaker today. As Sir Dr. Altaf Muqati just said, we want to just further emphasize on the distinguished speaker that we have for today. So, she is the founder and CEO of Filmwala Pictures, working for our industry since 2002, 1 year after I was born. And she delivers some of the best commercial blockbusters that have embedded themselves into Pakistani culture. Films like Na Malum Afraad 1 and 2, Actor-in-Law, Load Wedding, and Qaid-e-Azam Zindabad. Her films have garnered over 100 crore at the box office and have been released in over 16 countries. Her films are known for tackling socio-economic issues that pack a powerful punch and not just deliver a wonderful commentary, but also consistently provide the best entertainment possible. Her work has won over 20 awards, including Pakistan International Film Festival Award, Luxstyle Awards, and Hum Awards. Please join us in welcoming the 2023 Tamgha Imtiaz winner, Fiza Ali Mirza. Okay, Assalamu alaikum everyone. I wish I could see more of you from here. Because of the light, I cannot see all of you. But yeah, with the applause, I can tell, there's people sitting with great energy and, a lot of enthusiasm. I am not used to being on the stage saying so much. My strength is being behind the camera, and that's what I enjoy doing the most. Just because ये event आप लोगों का है, students who are studying film, who are interested in media, who come out of their homes to go back, but yet when they come to the shoots, they don't think about going back home. I would feel honored and blessed to be a part of this. जब सर सकलान ने मुझे कहा कि मुझे यहाँ पे आके इस तरह से एक ओपनिंग स्पीच का हिस्सा बनना पड़ेगा, तो मुझे कुछ देर के लिए लगा कि शायद कोई पैनल डिस्कशन हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर कोई बात कर रहा हो और बात से बात जुड़े, तो आई वुड बी ऑफ बेटर यूज़. बट देन आई कुड नॉट से नो, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस, गिविंग स्मॉल लिटिल लेक्चर्स, जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है. मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ जितने यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, बट जो मेरी कैपेसिटी में मुझे आता है, आई लाइक टू गो एंड स्पीक टू द चिल्ड्रन एंड आई एम ओपन to share my knowledge. And जब सर ने मुझे कहा कि इसके लिए आना है, तो for the first time an HOD himself was connecting as if a student is connecting. He was so keen, he was so in it, and he was so passionate about this entire event. I've been coming to Zabis before, and every time somebody from the student council has been connecting with me, this is unusual. And this energy is definitely the kind of applaud that you guys gave him. He deserves way more than that.
So Zishan is sitting here. हम लोग कभी आप लोगों की तरह स्टूडेंट्स थे नापा के अंदर. We were in the same batch. मुझे पता है कि कितना मज़ा आता है. I'm missing that time. It is so nostalgic. और वो जो बच्ची यहाँ पे थी उन्होंने कहा कि she was born a year after. So it made me feel, oh, finally we are growing old, and of course seeing Zishan makes me feel older. But एक चीज़ ज़रूर रखिएगा आप लोग अपने अंदर. मैं कोई भी लिखी हुई चीज़ यहाँ पे बात नहीं करना चाहती क्योंकि इवेंट जिस तरह से सर ने ओपन किया है उसके बाद वो आई डोंट वांट टू रीड अप टू व्हाट आई काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड फॉर यू गाइस. आई जस्ट वांट टू टॉक माय हार्ट आउट विद यू ऑल. एंड ये जो बच्चा है आपके अंदर आज, अगर ये ज़िंदा रह जाए जब तक कि आप फिल्में बना रहे हैं और जब तक कि आप ज़िंदा हैं, इट विल हेल्प यू एंड यू विल चेरिश इट. सो इसको आप अपने अंदर रखिएगा. यही एनर्जी, यही एंथुजियाज़म, यही कीननेस, यही ड्राइव, मैडनेस, क्रेजीनेस, वट एवर यू मे कॉल इट, हैज़ टू बी देयर. But at the same time, one thing that is the most needed with all of this fun is discipline. Our work means discipline. ऐसा लगता है बाहर से कि अरे यार अब तो हम क्रिएटिव हो गए हैं तो ज़रा बस एक लुक होती है, एक स्टाइल होता है. मैंने कई बार पहले भी कहा है कि यार मैं एक अजरक वाला कुर्ता पहन लूँ या मैं एक फटी हुई पैंट पहन लूँ. इट्स योर चॉइस ऑफ वेयरिंग वट एवर यू वॉन्ट टू वेयर, बट देन आई शुड बी एबल टू सी द टैलेंट कमिंग आउट. I should be able to see the discipline that a filmmaker requires, be it in any department. अभी आसिफ आपको जब म्यूज़िक पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा स्कोरिंग में कितना डिसिप्लिन चाहिए. या जब ज़िशान आपको फिल्म 1 मिनट के अंदर फिल्म बनाना, 1 मिनट की फिल्म बनाने के बारे में बताएंगे तो फिर आपको डिसिप्लिन के बारे में. एंड आई एम श्योर यू गाइज आर वेरी मच डिसिप्लिन दैट यू आर हियर टुडे, एज अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल प्रोग्राम. एंड यू गाइज आर वेरी लकी, very lucky to have universities with teachers of this strength. Most of the times I meet people who are going to these programs where there's teachers who themselves have not even studied film. बनाना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने पढ़ी हुई भी नहीं है, लेकिन वो किताबें पढ़ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, which is also fine. My point is being a part of a discipline जहाँ पे इतना कुछ है आपके पास. You have चारों तरफ से दरिया बह रहा है, बीच में आप खड़े हुए, तो यू आर इन पैराडाइज. तो इसको इन्जॉय करें और फिल्में बनाएं. अब तो कोई वजह ही नहीं रही कि फ़िल्म ना बने. हम जब थे तो हमें तो 35 mm के ख्वाब आते थे कि यार कैमरा कब आएगा हाथ में तो हम शूट कर पाएंगे. अब तो आप लोगों के हाथों में कैमरे हैं. कोशिश करें किसी की प्रिवेसी इन्वेड किए बगैर, किसी को हर्ट किए बगैर, कोई इमोशंस को तंग किए बगैर कुछ ऐसी बातें करें जो डिस्टर्बिंग हो, लेकिन उन लोगों के लिए जो डिस्टर्बेंस हैं. थैंक यू सो मच. We would like to request Ms. Fiza to please stay on stage to present a token of appreciation. We would like to welcome Sir Saklan Zaidi and Dr. Mukati again on stage. So this is a token of appreciation for all of the dedication and love that has been shown to our Media Sciences department.